میں نے ایک دعا بتائی تھی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. بڑا گھر ملتا ہے، سالہ سال سے بتا رہا ہوں، گمان سے بالا تر ملتا ہے، خیال سے بالا تر ملتا ہے، اور سوچوں سے بڑا گھر ملتا ہے. ایک تو یہ عمل ہے. ایک عمل بتاؤں گا بہت مختصر، یہ تو کھلا پڑھنا ہے جی. فجر کی نماز کے بعد 21 بار، ظہر کے بعد 22 بار، عصر کے بعد 23 بار، مغرب کے بعد 24 بار، اور عشاء کے بعد 25 بار سورۃ اذا جاء نصر اللہ پڑھنی ہے. اول آخر درود پاک، ہر بار بسم اللہ ساتھ ہو، سورۃ نصر پڑھنی ہے 21 سے 25 تک. جو بندہ یہ پڑھتا ہے، اللہ غیب سے اپنی چھت، اپنا فرش، اپنا گھر اور کھڑکیاں زندگی دیتا ہے. سفید زیرہ اور دھنیا. مدینہ منورہ میں ایک صاحب ہیں، ان کو گھوڑوں کا بڑا شوق ہے، شاہ سوار ہے، عرب گھوڑوں کے بہت شوقین ہیں. پاکستان میں آئے تو مجھے انہوں نے ایک شکوہ کیا، کہنے لگے جی آپ اپنی حکومت سے شکوہ کریں. میں کہ میں تو سیاسی مزاج نہیں ہے، ساری پارٹیاں میری، میں تو فقیر ہوں، ہر فرقہ رنگ نسل میرے پاس آتا ہے. کہنے لگے یہاں ایسے ایسے نسلوں کے گھوڑے ہیں، آپ نے اس کو جوڑا ہوا ہے سامان اٹھانے میں، چیزیں اٹھانے میں، ان کی نسلوں کی ہمارے پاس باقاعدہ سندیں ہیں اور ہزاروں سال تک ہمارے پاس اس کے شجرے ہیں. تو مجھے کہنے لگا کہ میں کبھی تھکا نہیں، اور میرا اگر کھا لوں، میرے پاس ایک قہوہ ہے، آپ کو آج بنا کے رکھا ہے. میں نے پیا، بڑا لذیذ قہوہ تھا. یہ کیا ہے؟ کا سفید زیرہ اور دھنیا ہلکا سا کوٹ لیں. ٹھیک ہے. کوٹنے کے بعد پتی کی طرح، دھنیا خشک پتی کی طرح اس میں ڈالیں، پتی کی طرح ابالیں، دودھ نہ ڈالیں، میٹھا چاہیں ڈالیں ورنہ نہ ڈالیں. اس کو چسکی چسکی پئیں، جتنے کپ پئیں. یہ موٹاپے کا، چربی کا، کولیسٹرول کا، ہائی بلڈ پریشر کا، ذہنی ٹینشن کا اور نیند کی کمی کا اور معدے کی تیزابیت جلن کا لاجواب قہوہ ہے. ایک درویش سے ان کی اولاد نہیں تھی. ایک بندہ تھا کہ بڑی مشہور ہستی تھی، بہت مشہور ہستی تھی، بڑے صغیر کی، بڑے اللہ والے پیر تھے. ایک بندہ تھا جہاں جاتا کہتا میں حضرت کا داماد ہوں. لوگ بڑی عزت کرتے، حضرت کا داماد، کھلاتے پلاتے، پیسے مال. کسی نے آ کے کہہ دیا حضرت آپ کے نام پہ لوگوں کو لوٹ رہا. پتہ کیا، ٹھنڈی آ بھر کے کہنے لگے بھائی ہم لوگوں کو چلو آخرت کا نفع نہ دے سکے، کوئی ہماری ذات سے دنیا کا نفع تو لے رہا. نفع لے رہا، مخلوق کو نفع ہو رہا، مخلوق کو خیر مل رہی ہے. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ انسانیت کو فائدہ ہو رہا. فرمایا جو کسی نابینا کو ہاتھ پکڑ کے صرف 40 قدم چلائے گا، اللہ کہتا ہے جا پچھلے گناہ معاف ہے. صرف نفع مند ہو جائے انسان، اور اللہ کی ہاں یہ سب سے بڑی قیمت ہے اس کی. سورۃ الم نشرح 11 بار منہ میں پھونکے بچے کی، کانوں میں پھونکے، بہرے پن کے لیے، گونگے پن کے لیے ایک. اور سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات افحسبتم انما خلقناکم سے آخر تھا. یہ وہ آیت ہیں. میرے حضور تشریف لے جا رہے ہیں. ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی تھا جادو کا مارا، بیماریوں کا مارا پڑا ہوا تھا، پڑھا اور کانوں میں دم کر دیا. حضور نے پوچھا، آقا نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، عبداللہ کیا پڑھا؟ یا رسول اللہ یہ پڑھا. تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات، اب یہ سننے کی بات ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے. یہ اگر 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کے، اور 7 بار اذان، جو اذان ہم نماز کے لیے دیتے ہیں، اونچی نہیں زبان میں، دل میں، اگر پڑھ کے اس کے کانوں میں دم کر دے ہر نماز کے بعد ورنہ صبح شام، اور علم نشرح منہ میں نے اس کے بہت نتائج، بہت برکات دیکھے. اور کچھ عرصہ لگاتار کریں، جلدی نہ کریں. فیٹی لیور جتنا بھی خطرناک ہے اور جتنا بھی مایوس کن ہے، ریوند خطائی اور نوشادر جو میں نے بتایا جی، کریٹینن یوریا فلاں کے لیے چٹکی دن میں 9 دفعہ 10 دفعہ ڈبی آپ نے پاس رکھ لے، جیسے پٹھان کی نسوار کی ڈبی ہے، ایسی چٹکی کرتا رہے. فیٹی لیور، حتیٰ کہ لیور سورائسس کے لیے، جس میں لیور کہتے ہیں کہ اس کی سرجری، اس کا آپریشن ہوگا اور لیور متاثر ہے، اس کے لیے یہ ٹوٹکا زبردست ہے. ایک دوا ہے فل دراز، بس اکیلی دوا ہے، مختصر. میری کوشش ہوتی ہے
वजीफा मुख्तसर हो, दवा मुख्तसर हो। फिर मैं आपने दवा खाने की कभी दवा नहीं बताता, और जो दवा बताता हूं अल्हम्दुलिल्लाह आजमूदा होती है। फिल दराज बारीक पीस लें, 100 रुपए की 50 रुपए की ले लें, की दुकान। हाँ हाँ आसान मिल जाएगी। फिल दराज उसको बारीक पीस कर कैप्सूल भर लें, बड़ी साइज के 2 कैप्सूल सुबह शाम, या बड़ी चुटकी लेके मुंह में पानी से ले लें। खवातीन में जो हार्मोनल मसाइल हैं, गैर जरूरी बाल निकल रहे हैं, या ऐसी मसाइल हैं जिसमें कभी ज्यादा कभी थोड़े पेन, दर्द, तकलीफ, उसके लिए बहुत कमाल चीज है। मेंसेस से पहले इस्तेमाल करें, दरमियान में ना करें। जरूरत तकलीफ ज्यादा है, खुल के नहीं हो रहे, तो दरमियान में गर्म पानी से ले ले, बहुत अच्छी चीज है। फिल दराज जिस्म की गिल्टियां देखी जाए, सबसे पहले पानी की हैं, लिक्विड की हैं, या चर्बी की हैं। अच्छा कुछ भी हो जिस्म की गिल्टियां, तुख्म सरस, शरी सरस एक दरख्त है, उसका मिल जाता है, बीज मिल जाता है, तुख्म सरस और छोटी इलायची, बस ये 2 चीजें। 50 ग्राम वो हो जाए, 50 ग्राम वो हो जाए, बिल्कुल बारीक पीस लें। और बड़ी चुटकी सुबह दोपहर शाम, 1/4 चम्मच सुबह दोपहर शाम। जो गिल्टियां किसी जगह भी हल नहीं हो रही और बहुत बड़ी हो गई हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता महसूस करेंगे वो हल होना शुरू हो जाएंगी। इस पे एक वजीफा बताऊंगा। सूरत तब्बत यदा सिर्फ 11 बार हर नमाज के बाद पढ़ के ऐसे पूरे बदन पे, जहां खास तौर पे गिल्टी हैं वहां हाथ मार दें, हाथ नहीं पहुंचता इशारा कर दें। सूरत तब्बत यदा 11 बार हर नमाज के बाद। नमाज भी है, इस आयत के अंदर दीदार मुस्तफा है। पढ़े इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फिर पढ़े दिल की कैफियतों में डूब के, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ते रहें इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या ना मालूम इस मजमे में कौन सा ऐसा बैठा है और कौन सी अल्लाह की बंदियों में ऐसी अल्लाह की बंदी बैठी है जिसके पढ़ने से उसको रहम आ जाए और अल्लाह इस आयत की बरकतें, इस आयत के फजाइल, इस आयत के कमालात और इस आयत की तासीर इतनी अता कर दे, मेरे और कमली वाले के दरमियान पर्दे हट जाए, मेरे और कमली वाले के दरमियान दीवारें हट जाए और दीदारे मुस्तफा नसीब हो जाए। जो बंदा इसको 7 बार सोते वक्त पढ़ के सोता है, उसका इश्क कामिल हो, उसका विजदान कामिल हो और उससे कहीं ज्यादा उसका यकीन कामिल हो। कोई बंदा आज तक कायनात में ऐसा नहीं मिला कि जिसको इसका कमाल, इसकी तासीर और इसकी बरकत और इसका फैज और इसका करम ना मिला हो। मुकद्दर लिख दिया, रहमत लिख दी, अता लिख दी, उसके नाम के भरोसे पे कह रहा हूं इंशाअल्लाह के साथ कि अल्लाह ने आपकी पेशानी को नूरानी कर दिया, रूहानी कर दिया और पेशानी में से नूर की लाटें और नूर की रोशनियां इंशाअल्लाह निकली हैं और निकलेंगी और हमेशा निकलेंगी। और आपने जो दिल पे लिखा है या जाहिरो, इस दिल पे या जाहिरो की बरकत से अल्लाह ने इस दिल को अपना घर बना लिया। इस दिल में अल्लाह आ गया, इस दिल में अल्लाह समा गया, इस दिल को नूरानी बन गया ये दिल। और दिल के अंदर के खोट और जिस्मानी रूहानी ऐब बीमारियां इंशाअल्लाह ये सारी या जाहिरों की बरकत से निकल गई। और आपने जो हथेलियों पे लिखा है, अल्लाह इस हाथ को कभी मंगता नहीं रखेगा, अल्लाह इस हाथ को हमेशा देता रखेगा, अल्लाह इस हाथ की जरूरतें पूरी करेगा, अल्लाह इस हाथ को खैर की तरफ उठवाएगा इस नाम की बरकत से। और या जाहिरो जो लिखा है, अल्लाह इन लकीरों में रोशनियां, रूहानी और बरकतें इंशाअल्लाह भर देगा। अमल छोटा सा और उसकी तासीर बहुत ज्यादा, अमल छोटा सा और उसका कमाल बहुत ज्यादा। क्यों? अल्लाह का नाम है, हमने अल्लाह के नाम को अदा किया, अल्लाह के नाम को पढ़ा, फिर अल्लाह का नाम जाने रब जाने। क्यों? अल्लाह सच्चा, अल्लाह का नाम सच्चा, अल्लाह सच्चा, अल्लाह का नाम सच्चा, फिर अल्लाह के नाम के ऊपर जो वादे हैं वो भी सच्चे हैं।
सच्चा सच्चे वादे करता है, सच्चा सच्चे वादे करता है और सच्चा करके दिखाता है, और अल्लाह करके दिखाता है जो सच्चे वादों को लेके चलता है, और इंशाअल्लाह वो जिंदगी में कामयाबियों और बरकतों और रहमतों और अताओं की मंजिलें तय करता है। 2017 में एक ऐलान मुझे उसने बताया, मेरे दादा ख्वाब में आए, वक्त के वली थे, कहा कि एक महंगाई का तूफान आने वाला है, कुछ चीजें ले ले, ये चीजें लेके अपने पास रख ले, नफे में रहेगा, खैर में रहेगा। क्या गुमान था कि 2017 के बाद इतनी महंगाई होगी? क्या ख्याल था? क्या तस्वर था? याद रखिएगा, आप अपनी नस्लों के लिए बहुत कुछ मनवा के जा रहे हैं, फिर नस्लों के लिए बरकतें और खैरें मनवा के जा रहे। एक सवाल मैं आपसे करता हूं और जवाब भी आपने देना है, जितनी भी दुनिया की महंगाई हो जाए, इससे कहीं अल्लाह ना करे लाख गुना ज्यादा हो जाए, दरबारों के पीर, गद्दी नशीन, मुजावर, इन पे कोई फर्क पड़ेगा? 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 क्यों? उसकी वजह है इनके बड़े आप जैसे दीवाने थे, अमाल नबवी, मोहम्मद आले मोहम्मद के ये अमाल और ये तस्बीहात करके गए थे, जिन पे अल्लाह के वादे हैं। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को पालूंगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हारी नस्लों को खिलाऊंगा, मैं तुम्हें पहनाऊंगा, तुम्हारी नस्लों को पहनाऊंगा। अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा, अल्लाह के वादे सच्चे, अल्लाह के हबीब के वादे सच्चे, और अल्लाह सच कर दिखाता है। और अल्लाह कहता है मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को पाल के दिखाऊंगा। हाँ, तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को पाल के दिखाऊंगा। इन दरबारों के गद्दे नशीन, इन दरबारों के मुजावर, ये दरबारों के पीर सदा पलते रहेंगे, क्योंकि इनके बड़े कमाइयां करके गए थे, कमाइयां। उस शरीफ के एक मखदूम साहब थे, हमारे बाग और उनके जमीनें आपस में बनना लगता है करीब करीब। मैं वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास साथ गया, फौत हो गए, आज उनको फौत हुए भी गालिबन कोई 20-30-40 साल इतने हो गए। तो मैं उनके साथ गया, तो वो पढ़ रहे थे, कुछ बड़ी मोहब्बत से बिठाया और पढ़े। आज भी मुझे उंगली याद है, दरबार हजरत महबूब सुबानी, हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के औलाद, उनकी तरफ करके कहने लगे इनकी कमाइयां बैठे खा रहे हैं, इनकी कमाइयां। और वो जब सिंध में तशरीफ ले जाते थे, नेक शरीफ आदमी थे, सिंध में तशरीफ ले जाते थे, गाड़ी की खिड़कियां दरवाजे खुले होते थे, नोट पैठे पैसे सोना गाड़ी भर जाती थी, लोग इतना डालते थे, और उनकी गाड़ी के पहिए व्हील के नीचे से मिट्टी बरकत के लिए उठा लेते थे। निस्बतों की बरकत है, वो खुद भी बहुत नेक थे, मुखलिस थे, और उन बड़ों की निस्बत है। आप वो हैं आज जो हुवल बाकी और कल की हमारी महफिल के वज़ाइफ, परसों के वज़ाइफ, आज के अमल और मोहम्मद आले मोहम्मद की निस्बत के अमल, आप वो हैं जो इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी नस्लें आप पे नाज करेंगी, कहेंगे हमारा कोई बाबा, दादा, परदादा, कोई नाना किसी फकीर के यहाँ गया था और उस फकीर को मोहम्मद आले मोहम्मद के वज़ाइफ किए थे, और जिन पे अल्लाह और उसके हबीब का वादा था, मैं तुम्हें पाल के दिखाऊंगा, खिला के दिखाऊंगा, और अल्लाह के खजानों से पल के रहोगे, खा के रहोगे। फरमाया अल्लाह पाक फिर तुम्हें इसी तरह पालेगा और इसी तरह अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह खुशकिस्मत हैं, आपको मिला है, आपको मिलेगा, आप महरूम नहीं रहेंगे, आप महरूम नहीं रहेंगे। ये गर्मी ये हफ्स 4 दिन की है, खुशहाली उम्रों की है, नस्लों की है। और खुशहाली कैसे लुटती है? हमारे मुखलिस थे सुल्तान साहब, तस्बीह खाने के खलीफा थे, फौत हो गए। कहने लगे मैं एतवार बाजार में कैंट में गया, एक ठेले वाले ने मुझे जोर से आवाज दी और मेरा नाम लेके और मेरी बीवी का नाम लेके मुझे आवाज दी। हम गए, हमें कौन जानता है? कहने लगे अंकल आपने हमें मुझे पहचाना नहीं? कहा नहीं बेटा, मैं उसका बेटा हूं। ओ, कहा आप मुझसे कुछ चीज खरीद लें, अगर आपने खरीदनी है। सुबह से एक गाहक नहीं आया, मैंने घर की जरूरियात। कहा जब इसके माँ बाप की शादी हुई थी, इस जवान के माँ बाप की शादी हुई थी, हम उस शादी में शरीक थे, चांदी के कीमती भारी बर्तन सेट आया हर मेज के ऊपर, और यह ऐलान हुआ ये बर्तन आप साथ घर ले जाएं। ये ऐलान हुआ ये बर्तन आप साथ घर ले जाएं, और कहा कि वो हर बंदा जो भी आया था, जिसकी टेबल पे जो चांदी का बर्तन आया, वो साथ घर ले गए। और उसी की औलाद आज कहती है कि चचा
कुछ थोड़ी सी मुझसे चीज खरीद लें, मेरे हालात कमजोर हैं, आप खरीद लेंगे तो मेरे घर का चूल्हा गर्म हो जाएगा। याद रखिएगा, मालदारों को लुटते देखा, फकीर होते देखा, गरीब होते देखा, पर कमली वाले और मोहम्मद और आले मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद, इनके वज़ाइफ, इनकी दुआएं, इनके अमाल, जिस पे अल्लाह के वादे, उसके हबीब के वादे, उन वादों को कभी ना लुटते देखा, ना छीनते देखा, ना घटते देखा, ना कम होते देखा, ना उनको ज़वाल आते देखा।